session, and I've done that now. Now, what happens is normally when a small or medium businessman starts a new work or a new line, he knows that there is a need of a website which which will help him go through things. And then a normal course of time, you call someone through someone and find out that someone is into websites, and you call him or her and ask them for a code. Then he comes and he tries to explain to you that it's a hell lot of work. And then usually fees for a static website. So there's a lot of jargons around here. So something like IP address, DNS, domain, coder, language, static, and there's so many jargons which revolve around it that people just get scared. And because we ourselves don't know what to do and what to expect, we are unable to find a price parity and on how to negotiate with this website person. We know, should we actually negotiate, should we not, what are the things we expect from them. All those things are important. Now, the way I'm going to conduct this session is, first I will try to explain what all the jargons will actually mean, giving them some analogy. Then we will guide you through a very simple yet effective tool called Wix to help you make your own website. Now, that part I think Swaroop will take, and I will chip in wherever I think I can be of help. So before starting that, I want you guys to quickly write on your uh, chat boxes if any of you know what IP address, domain, and DNS and hosting and all those things mean. See the things basically written on the green in the screen. If anyone knows all 6 or 7 out of it, say yes. Otherwise, say no, so that I know that what is the crowd experiences. Okay, fantastic. I've started getting results. Okay, thank you. So what I'm going to try to do is, I'm going to draw an analogy between a website and a physical site, so that we understand that what it is. Now let us understand, when someone goes and buys a plot and creates a building on it and then calls it a showroom, what are the phases you all go through? So सबसे पहले you find a piece of plot, right? एंड उसका एक्चुअल एड्रेस रहता है खसरा नंबर 22, मौजा नंबर 35, एंड ग्राम ग्राम भंडारा डिस्ट्रिक्ट, भंडारा तहसील, all those things. And then it becomes so difficult, you just don't understand what it is. So what happens is, someone goes to someone buys that plot, develops it, goes to a sanctioning authority, and calls it a new area. Say they call it Greater Nagpur Housing Society or New Ramdas Pet for that matter. And what happens after that? After that, that same Khasra number 22 becomes 17 New Verma Layout, Ambazari, Nagpur, which is more readable, more understandable for a common man. Once that is done, that piece of land becomes your property, and you buy it, and you, on that property, you start building. So you hire an architect, then the architect will do the designing part of it. Then you will hire a civil constructor, a civil engineer, or electrical contractor, who will start building on it using some mediums like bricks, sand, and all those things. Now that is a way a physical site is made. In a very similar fashion, a website is also made. So what happens is, a website is basically, what is internet? Internet is basically a link of all computers in the world, whoever is connected to that network.
So I tried to find out who owns the internet, and the short answer is no one. It's just a network of all the computers. So there are some standardizations, and all these locations are named has a actual physical address, which is like which is called the IP address, and which is like 167.168.23.2.5, something like that. Now these in the real world, what do they mean is, so in the real world, it would mean the actual location, that khasra number wala thing is actually the IP address of the place. Now what happens is once that is done, we need a sanctioning authority and then finally call it a layout and then more syllable. So that sanctioning authority is called domain naming system. Because this 123, 124 is easier for machines to remember, but it's not that easier for humans like us to remember. So what we do is we get the plot sanctioned, make the address more readable in terms of a postal address. And that is what your domain is. So www.ergonomics.in, that is my website. With uska basic address will be something like 137.148.24.36. So once you start doing that, imagine a time when someone asks me what is your website and I say 124.136.47.128. No one will end up because it is difficult to remember that. But now I created a postal address for my website and I call it domain, which is ergonomics.in. So now if someone asks me where is your website, and I'll say just go to www.ergonomics.in. This is a domain, so it's more of a postal address. Having said that, now in the virtual world, this is only the address, but you actually need a space, that space, that plot, जो हम 3000 square feet बोलते हैं 2000. So that space in virtual world is calculated in GBs and megabytes and gigabytes. And there are companies which they lend you the space. And that space is called the hosting space. So it's actually the plot of land where you are going to construct your brick and mortar store. In physical world, we call it plot. In virtual world, we call it hosting space. This is जहाँ पे आपकी website बनेगी. Now, having done that, what you do next is go to an architect, right? Shera ma'am is amongst us here. So normally we will go to someone like Shera Vano merchant and ask her, I have this land ready with me, and I'm sorry, I have this land ready with me, and I need a. I'm sorry. So I need a design made out of it, and she will design something out of her experience, and she will get inputs from you how you want to go about and do things. Now similarly, a parallel in the virtual world is a web designer who will design everything for you, right? Now once you get your website designed, or your actual plot designed by an architect, next thing is you hire a contractor, civil contractor, electrical contractor, and a team of contractors who then come along together and start building things out of their skill sets. Now in virtual world, that contractor is called a coder. Now this guy codes your website and then lists it on the plot or on the space which the hosting service has provided. Now, what does a civil contractor, electrical contractor use? Now, they use physical materials like bricks and cement and sand to build your house. Similarly, a coder uses different languages like HTML with CSS, JS is JavaScript to create your website. Now, it is not necessary that your website will have only one language or two language or five language. It can be a multiple of things, but what a coder does is it converts that language into a visual representation, and that finally is what we call our website. So
if uh, so these are basically the 767 jargons which we use, like IP address, DNS, domain, hosting, agency, coders, and HTML or languages. Now, if now my question to you guys is, if you are with me and in line and you really understood what I was trying to say, please write yes in the chat box so that I know that you have understood what I was trying to share with you. So a lot of yeses, and that is half work done. Now let me come to the most important question. Then what actually is your website guy doing for you? There's one website guy, you call them and they give you all this jargons, and finally they give you a quote and you are like, I don't know any of it. So how can I pay or even negotiate for it? Now, usually what happens is that in physical world there are different agencies for different things, but in virtual world you have that one website guy who's a website designer come coder who then buys space on your behalf, and then who creates that domain registry and all those things. Now, please understand that anyone who's doing 10 things for you will finally charge a commission on all those 10 things. And that is why they charge certain things. Like Shera ma'am just said in the chat box that that's why we have similarly a turnkey agency in physical world. जो एक बार बोलता है give me money, I will do everything for you. Now that turnkey guy is your website guy. Now he can be any of this 6 or 7 entities. He can be a domain registrar, he can be a designer, he can be a coder, or more or less sometimes he can only be a agent who will hire someone on your behalf and do all this thing. And that is why there is a price parity. Now, by no means I'm trying to surpass this whole chain or tell you that you don't need any one of them. What I am going to tell you now, the next important question is what we are going to tell you today. And what we are going to tell you today is to buy a ready-made site. So आप एक रेडीमेड दुकान खरीदे और उसमें थोड़ा सा इंटीरियर का डिजाइनिंग अपने हिसाब से कर ले और कल से अपनी दुकान शुरू कर दे. So that is what we are trying to do. So we have identified one particular tool for doing that, which is called Wix. So people who out of you who are actually using a mobile to view this and have a laptop ready, it's time to start it. And Swaroop, if you will be kind enough to take it further and explain people how Wix works. Sure. Sure. You can also share your screen. Right. So before sharing my screen, I think I would really like to address one particular thing that Ankur Bhaiya has created some amazing analogies for us. I did not think that explaining jargons about the website could be so simple. Rightly pointed out by Shera ma'am that you have turnkey agencies, and she also kind of understood what you were trying to say. I think most of us have understood, but let's not get flooded by all this information about jargons. Let's not get worried about all this technical information about website creation. As Ankur Bhaiya has already told us that we are creating an already existing website. We're just making a few changes. So we are already buying a website which is created on a tool. We are only making a few changes to the content and the images and making the website ready for our business purpose. So let me just start sharing my screen with you. All right, so if you guys are ready with your computers, I would like you all to log on to wix.com. That is wix.com. So Swaroop, I was just wondering, are you going to tell us how to make a website as well as how to make a website and
only ki what are the thumb rules of what page should content, what data should be there, what data should not be there. आप बता. Yes, I would be. हाँ, मैं ये सारी चीजें बताऊंगा अंकुर भैया. I would be touching all these key points, which are I think the most important parameters of a website, which is content, images. आपके कितने ideally कितने pages होने चाहिए आपके website पे, and I think it all depends on the kind of category that your business is in. आपके business का जो domain है, be it FMCG, real estate, education, in architecture, engineering, every particular domain will have a certain look and feel and a certain tone of the content. So as in when we start with our process of creating the website, I would take some time out and discuss about those particular points. Achha, there is one question for you while doing it. Right. If you can tell me what is the difference between Wix and WordPress? Okay, so WordPress is like a more technical platform to create websites. WordPress also has a lot of plugins, so there are a lot of opportunities to customize the website as per your needs. Whereas Wix is not as extensive a platform as WordPress. WordPress has features, so even in Wix you can. Yes. If I can define it this way, that WordPress is for professionals, and Wix is for amateurs. Yes, you could say that in a way, but I think since the time I've started exploring Wix, I think Wix also has a lot of integrations and a lot of add-ons that you can use. जैसे आप Wix में भी अपना shopping cart वगैरह integrate कर सकते हैं. So even on Wix, you can create an e-commerce platform, e-commerce website for your business. Or WordPress. My personal opinion is Wix. So it's very personal. That Wix has a better UI, user interface, and it is far easier for a person like me who has zero coding experience to get accustomed to Wix. It's finally something like a PowerPoint presentation आप बना रहे हो. मुझे WordPress थोड़ा सा difficult लगा to grasp. Right. तो WordPress में अंकुर भैया the thing with WordPress is कि WordPress में बहुत सारी चीजें एक जगह पे नहीं है, और Wix का एडवांटेज ये है कि Wix में सारी चीजें एक जगह पे है, तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स और एड-ऑन्स इंस्टॉल नहीं करने पड़ते अपनी वेबसाइट पे. Whereas WordPress में there is a possibility that you might need to install a lot of plugins and add-ons for your website. Please start. So that is one advantage of using Wix. Yeah. Alright, so I would like to ask everybody, has everybody logged on to Wix.com? Please reply with a yes. Okay, let me write. Okay, so once you're here, click on get started. I think some of you might have had a different landing page. That doesn't matter. थोड़ा सा अलग रहेगा, but finally you have to log in. Yes, you'll have to sign up on the page basically. So I can directly log in with Facebook if I want. Yes, you can log in with Facebook or Google if you want. Because क्या है ना, आजकल इतने passwords हो गए हैं, याद रखना मुश्किल होता है. तो normally what I do is I log in using Facebook, or so that things are easy. But I think you already have a login created. Yes, so I already have a login created. I'll use that. But people can use anything. Yes. Please let me know if I'm going too fast. I'm looking at the chat box simultaneously. Okay. So you have your own website made using Yes, Ankur bhai, recently I made a website for myself using Wix.com. I think it was a simple 2-hour job for me. वो इसीलिए भी क्योंकि I've had slight experience of working with websites before. But having said that, I don't think यहाँ पे सभी participants को भी बहुत ज़्यादा time लगेगा अपनी website बनाने में. If they want, they can create it simultaneously with me, और उसमें more or less 2 hours के आसपास time लगेगा.
So अगर जैसे यहाँ पे आपके साइट बनी हुई है इसलिए माय साइट करके दिख रहा है, अदरवाइज ये जगह हाँ, दिखेगी. ये जगह ब्लैंक दिखेगी अदरवाइज. राइट. Okay, and then how to proceed from here? राइट. सो जब मैं माय साइट्स में जाता हूँ, आई वांट टू क्रिएट अ न्यू वेबसाइट. तो Right. आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट अ न्यू वेबसाइट जैसा कुछ दिख रहा होगा. नीचे होगा आई थिंक. जस्ट अ सेकंड. ये ब्लू वाला. ये तो क्रिएट फोल्डर है, इसके बगल में. So if I click on create a new website, तो Wix आपको पूछता है कि what kind of a website do you want. जैसे कि मैं बात कर रहा था about the domain of your business, about the category of your business. तो इसमें अगर आपको ऑनलाइन स्टोर अगर क्रिएट करना है तो आप ऑनलाइन स्टोर सिलेक्ट कीजिए. इफ यू आर अ डिजाइनर, यू विल हैव टू सिलेक्ट द डिजाइनर कैटेगरी. इफ यू वांट टू क्रिएट अ ब्लॉग, सो लाइकवाइज जो भी आपकी कैटेगरी सबसे ज्यादा फिट होती है इसमें, आप वो कैटेगरी चूज कीजिए. So I think they will do a filtered kind of templates for you. अगर आप डिजाइनर किया तो डिजाइनर वाले टेम्पलेट्स आपको दिखेंगे. हाँ. अगर आपने ऑनलाइन स्टोर किया तो जो ऑनलाइन वाले हैं, फोटोग्राफी किया तो उस टाइप के स्टोर. एग्जैक्टली. सो द बेस्ट पार्ट इज कि ये जितने भी कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई है, तो विक्स ने इन कैटेगरीज के हिसाब से अपने टेम्पलेट्स को क्लासिफाई किया हुआ है. एंड ऑल दीज टेम्पलेट्स हैव बीन ऑप्टिमाइज्ड फॉर दीज पर्टिकुलर डोमेन्स एंड कैटेगरीज. सो लिटरली इनके पास वेबसाइट्स का शॉपिंग मॉल है. एग्जैक्टली. अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट चूज कर लीजिए. यस. ग्रेट. तो assuming that most of us here are looking for a business website, so I'll go ahead and select the business category. Great. अब ये बहुत ही एक important चीज है. यहाँ पर आपको Wix पूछता है कि let Wix ADI create a website for you. So Wix ADI is basically an automated tool जहां पर आप एक वेबसाइट का रेफरेंस उनको दे देते हैं और अपने थोड़े बहुत डिटेल्स वहां पर एंटर कर देते हैं. एंड Wix will create a website automatically create a website for you. Right. So let's just go over this for 2 minutes or so. But our aim is to finally use a template on our own. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे आपने मान लीजिए. So Swaroop, let's ask people, guys, if any one of you can tell us your category and the first one who tells us, हम उसके लिए एक template try करते हैं बनाना. Right. In the Wix ADI. Events designer. There is a dental doctor with us. Can you find a category for dentist? Absolutely. Let's see if Wix has it. So Wix has a dental clinic. Okay, so Dr. Tushar Mohta is a dental clinic owner. Right. So if I go to dental clinic, I'll select dental clinic. I'll go ahead. So Wix will ask me what kind of features do I want for my website. Okay. Do I want to take online bookings and appointments? Do I want to chat with the visitors? Do I also want a blog? So these are already created by Wix and they will just attach it to yourself. Yes. Okay. So this is like a crash course. I don't think we need a crash course because this is already a crash course. We don't need a shorter crash course than this. Okay. So I will use a template and then I'll create a website from scratch. But people can just if you can just click next and show us, and then we cannot see. Right. I'll do that. Take these two things, and so we take two things, which is bookings and chat. Okay, and then we do next. Right. If you want, you can choose any other features inside which are given here. Okay. So if Tushar Mohta ji would tell me the name of their clinic. It's Mohta Dental Clinic. Okay. So I'll write Mohta Dental Clinic here. Okay. Next. I'm sorry. Yes. So if you have an existing website, you can, mention your existing website over here and Wix will take care of the rest. So the idea here is कि अगर आपकी कोई पुरानी website है, if you were using a really old website which was made on, Flash technology or something like that,
So it will be very easy for you to create a new website with a newer technology. So Wix will grab all the information that is existing on your that is there on your existing website and create a new website for you. If you don't have an existing website, you can mention your Google business listing. Okay. तो अगर तुषार मोहता जी का गूगल बिजनेस लिस्टिंग पर गूगल पर उनका बिजनेस लिस्टिंग है, सो आई विल मेंशन इट हियर. तो यहाँ पर मोहता डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर ये आता है. आई एम अज्यूमिंग दिस इज द वन. Yes. So if I click, yes. So I have a hack here. Right. If instead of you having your own website, agar you are very inspired from someone else's website in your own domain, right, and you write that website's name, right, it will grab the content from there which we can finally edit अपने से. हाँ, कर सकते हैं वो भी, है ना? I am very much inspired by Shera Bano Merchant's work and her website. Okay. I can just write her website and I can grab the content. I know there is a problem with the plagiarism here. Right, right. But at least to get that, framework of things. Exactly. You can do that. Right. But let's skip to, let's put next button here. Right. Because there were no images on Google, it couldn't find any. Right. No, it won't select. Okay. Now he can put a logo here as well. Okay? Right, right. And so Wix already has a logo maker. Wix has a free logo maker. It gives you an option to create your logo for free. If you have already has a logo created by someone else, yes, you can just click on the plus sign and then add your own logo. Why don't you put a logo, something, any kind of logo? Okay. Or any other business. Right. So for the time being, I'm using Ergonomics ka logo. Actually, I wanted you to use a more colorful thing if you have. So that the next feature will be more easily available. Okay. So, let's see if we have a better colorful. All right, so let's use Zoom. I think you should use Prezi. Prezi? All right, let's use Prezi. There are 2-3 colors in it. Okay. All right, so yes. And so as you can see, the name is already there. You can edit the name if you want to. Okay. The email, it has taken up my email because this is the email I used to log into Wix. Right. Similarly, it will grab the address from the Google business listing. If you had a phone number over there, it would grab the phone number also. Yeah. So let me go ahead and mention my phone number here. So if you have a fax number, I don't think anybody uses fax number now. Yeah. You can add social links. For example, if you have a Facebook page, even if you don't have a Facebook page, you can mention your own Facebook profile link over here. You can mention some social links here. Sorry? Why don't you mention your social link here? Yes, yes. So I'll mention my Instagram link, for example. So how many social links can I put? As many? So the most popular social media channels are, Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn. So I think using these 4 will suffice. Okay. So I'll mention my Instagram handle, which is Swaroop Bhartia. So what I'm thinking is what Wix will do is, put all this data automatically into it and we don't have to worry about it. Right, right. To do all those things. Right. Okay, why don't you put a Twitter handle as well? Okay. Right. Okay. So we've mentioned the Twitter handle as well. Yeah, 2 is enough, Swaroop. Right. We have to go to the template wala part. Correct, correct. Okay, so now it's asking us to select a theme. Yes. Now he is a dental clinic. Right.
So something a luxury would not be a very Right. apt theme for it. I think a breeze, Breeze, yes, something which will give that cool look and less scary. God, correct, I'm very scared. I'm so much scared of dentists. correct. So let's select the breeze template. Yeah, I guess Tushar has also said to select breeze. Okay. So basically, it will use colors from my logo to create a palette for my site. So the best part is that if you already have a logo made, so your branding needs are taken care of because your website will be synchronous to the kind of logo that you have, which is really important in terms of the look and feel and the content of your website. Why don't you So create that palette? yes, So it will identify the colors on your. Okay. so it has identified these 4 colors. I can either skip it or I can use these colors. So let's use these colors. So it will take a little time to fix everything, arrange everything on a template. But from what I could understand, if you are really very new to all those things Yes, and you want to quickly do something, right. अब नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं यार, एक जल्दी से उसका वेबसाइट बना लेते हैं. Haan, This is a very good thing, exactly. and it gives you another 3-4 options. Right. So as you can see, it has given me 3 options. Here I like that black वाला option. Black one. थोड़ा. All right, let's go with this one. Okay. So I think for someone who does not want to get into the whole idea of creating templates and creating your website from the scratch, I think this is the best option. एक और चीज होती है स्वरूप, I think what is also good about this is you can create something like this. Instead of saying website coming soon, right, you can quickly create something like this. Correct. And put it on your website. Right. And then when you create a detailed website, till then this will act as some landing page for you. Correct. And so you can also mention that a better, I don't think better would be the right word, but a new website is on its way. Yeah. And for the time being, you can use this website as well. Yeah. So yes, now we have the website in front of us. So can we change all these things? Yes, Ankur. You can change all these images. You can change the number of pages that you want. So if I click on edit. Okay. Okay, so then it becomes that template wala thing which we do. Exactly, which we will eventually do. It becomes that particular thing. So let's not get into that editing part. Right. So, right. But in this way, can you quickly zoom over to that links, that Twitter thing and on. Right. So these are the social accounts that we had mentioned. So they are already preloaded with the. Yes. Okay. So if you can, view on my on the left side of my screen, my Instagram handle and my Twitter handle are already present over here. Okay. Similarly, the Google location will be taken by the Wix editor directly. So this is a panel of services, images for services, where you can mention the pricing for your various services that you have. Or if you don't want to mention the price, you can also not mention the price. Yes. Great. Opening hours and closing hours. So this is the kind of to give you a fair idea about how it's done. So they've mentioned my phone number below, and in the footer they've also. So I'll zoom in. So in the footer they've mentioned copyright 2020 by Mohta Dental Clinic. So one thing to notice over here is that this particular thing will appear only when you are paying for a website on Wix. If you're not paying for a website on Wix, your domain name will be, for example, Mohta Dental Clinic. If the name of the business is Mohta Dental Clinic, then your domain name will be mohtadentalclinic.wixsite.com. Okay. And if you pay, I think 1 rupee per day, it comes out to be 1 rupee per day.
if you pay that much money, my territory, please don't talk about. All right. I won't talk about pricing. So when you pay for this service, so your domain name will be mohatadentalclinic.com or whatever your business name is, and in the footer as well, you'll see a copyright 2020 by Mohata Dental Clinic or your business name. Great. So let's not spend a lot of time on this particular thing and get back to creating template by our own. So I'll go to the home page. Leave. Okay, guys, till the home page gets loaded, can you quickly tell me if you found this thing useful, and if you have found this useful, please write useful in the chat box so that I know that you are with us in this session and you are liking it so far. Okay, thank you. So it gives that Swaroop, it gives me that pleasure that Right. whatever I am trying to tell is actually getting across to people. Right. But according to me, okay, Swaroop, it is a feedback for you that people think that you are a bit fast. Okay. So I'll go slower. I'll be slower. Okay. But this was, if I'm not wrong, this was something like a very speedy thing, so that in 10 minutes something is ready and up. And if you want to create something more detailed, then you are going to tell us what, right? Right. Okay, please continue. So I am looking to create my own website. आपको यहाँ पर एक option दिखेगा. I don't know why I can't access it. All right. I was zoomed in. So create a new site. So this is what we are looking at. When I go to create a new website, I get all like we had seen earlier. हमें सारी categories दिखती है. So I'll select one category over here. For example, let's go ahead with business. And this time we are going to create my website because we have relevant data for it. Right. Absolutely. So earlier we saw how Wix automatically creates a website for us when we mention our Google address of our business. But right now we are going to look at how we will create our own website using templates provided by Wix from scratch. Okay. So I'll go to choose a template, and it says start with the template and make it your own with easy drag and drop and thousands of design features. So the best part is, like Ankur Bhai had mentioned, it's like a PowerPoint presentation. It's a basic drag and drop functionality which you have to use and create your own website. Okay. So here I'm seeing a lot of templates, already created templates that Wix has given us. Yes. But I have a furniture store, so you can. Right. You have a furniture store. So once you've selected business and services, you can go to store. So it says online store, fashion and clothing. So it has a lot of. I think there's a search all templates wala section. Upper top right corner mein you'll find a search all templates section. So for example, if I write a furniture. If I write furniture, so this is what I get. Okay. So Ankur Bhai, I think this particular thing, product design, this is something that I like. We could go ahead with this one, or we can check out other I templates like as well. Modern design meets comfort wala page. Modern design meets comfort. Yeah. Okay. ऊपर गया. एक second. ये लेफ्ट में थर्ड, लेफ्ट में फर्स्ट वाला. This one? इसके नीचे. अच्छा, ये वाला. Okay, home decor. But there are so many templates for my business. So for all businesses there will be a lot of templates. Some or the other templates. I think थोड़ा बहुत आपको keywords में थोड़ा बहुत आपको keywords में जो है वो changes करने होंगे. जैसे furniture अगर नहीं मिल रहा है तो you can write carpentry or you can write interior design or something of that sort. Okay. So eventually you will find a template which will suit your business. Okay. But if I am into office furniture, but I like a template which is totally different, say ऊपर जाइए एक बार. हाँ.
ये वेलकम टू टिम्बरलैंड वाला मुझे ये टेम्पलेट बहुत अच्छा हाँ, लगा, तो ठीक कैन है. आई यूज इट? Yes, of course you can use it, but provided you have the right images to go along with that particular theme. ओके ओके. क्योंकि the entire game is about how you write the content on the website, what kind of images you have on the website. So irrespective of the theme or the template, if you are using relevant images and relevant content for your business on your website, I think the job is done. So Swaroop, before you select a template, Right. uh, you want let all our viewers understand that having your own images is an important part of it, of Correct. the website. Right. Even if you hire a designer, he will ask you to give them some images and cut. Right. Right. So images is an important part. So guys, please note that before you start making your website, at least get those images clicked, or or they can do is they can select a template, go with the stock images right now, or फिर बाद में they can change the image. Is it possible? हाँ, yes, absolutely. That is also doable. मतलब you can publish your website and then you can make the changes on the go. See, the biggest trouble with businessmen क्या होता है ना कि अभी मेरे पास टाइम है, आप अभी Right. से वेबसाइट बनवा लो, बन जाएगी. सही. जैसे ही मैंने बोला कि मैं 2 दिन बात करूंगा, तो 2 दिन बाद कहीं और आग लगने वाली है. Right. हमको वहां की आग बुझानी रहेगी. Correct. तो मेरा सजेशन ये रहता है कि अभी कर लो जितना होता है, बाद में छोटे मोटे एडिटिंग होते रहेंगे. Correct. So yes, please continue, Swaroop. Right. So we were going to use this particular theme. Yeah. Just click on edit. That's it. Yes. I love how this websites have made things so easy. It's एक टाइम था अराउंड 5-6 years बैक, जब वेबसाइट बनाने के लिए इतनी कोडिंग और इतने लॉजिक्स और ये और वो लगते थे Correct. कि आप परेशान हो जाओ, इतना डिटेलिंग लगता था. So things have changed a lot, with the introduction of websites like WordPress, Wix, and a few others who are, working in this particular field. All right. तो Wix की सबसे खास बात ये है कि Wix has been designed keeping in mind people who have absolutely no knowledge about coding, about website design, and basically jargons जो आपने शुरू में introduce किया था. So at every stage of the website creation, Wix has some tutorials. Okay. So you can always use these tutorials by yourself. Watch these tutorials and then create the website. We are here to give you a more in-depth, information and an in-depth process about how to create your own website. Okay. So I'll skip this now. Okay. तो मेरे सामने ये पूरा का पूरा जो थीम है, हमारा टेम्पलेट है, वो रेडी होके आ जाता है. इसमें कंटेंट ऑलरेडी, द कंटेंट इज इन प्लेस. इफ यू वांट, यू कैन चेंज द कंटेंट. आई वुड सजेस्ट दैट यू write content which is relevant and specific to your business needs. स्वरूप, अगेन एक बिजनेस एंगल से मैं सवाल पूछता हूँ, आपकी सबसे वेबसाइट में कितने पेजेस होने चाहिए फॉर अ स्टार्टर? यू टू माय बिजनेस, राइट. आई हैव अ फर्नीचर स्टोर. हाँ, मेरा बहुत ज्यादा काम ऑनलाइन होता नहीं है. करेक्ट. बट मुझे एक ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए. मुझे बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए कि कोई अगर ऑनलाइन आता है मेरे साइट पे, राइट, तो उसको मेरी साइट दिखे और उसको मेरे आइडियाज और मेरे थॉट्स इन अ बेटर वे उनके सामने पब्लिश हो. करेक्ट. तो कितने पेजेस होने चाहिए आपके हिसाब से? तो अंकुर भैया, आइडियली 4 से 5 पेजेस आर मोर देन इनफ. तो आई विल मेंशन ऑल दोस पेजेस इन द चैट बॉक्स वन बाय वन. तो पहला होता है होम पेज. होम पेज जो होगा आपका, वो उस पेज पे आप थोड़ी बहुत डिटेल्स अपने बारे में बताएंगे, आपके प्रोडक्ट्स या आपकी सर्विसेज के बारे में बताएंगे. और वहां पर थोड़ी बहुत इमेजेस रहेगी, आपके बिजनेस का लोकेशन रहेगा, आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन रहेगा. सो दिस विल कंसिस्ट ऑफ द होम पेज. तो होम पेज में यू आर मीनिंग टू से जो पहला पेज अपने को दिखता है इज कॉल्ड होम पेज? यस. जब मैं जाता हूँ ergonomics.in में और जो पहला पेज दिख रहा है, दैट इज द होम पेज. तो उसमें छोटा मोटा थोड़ा सा टेक्स्ट व्हिच इज अ पर्सनलाइज्ड व्हाट यू डू, जैसे यहाँ पे मॉडर्न डिजाइन मीट्स कोजी कंफर्ट लिखा है. राइट. तो let's log on to ergonomics.in. ठीक है.
I think we're on products. तो ऐसा कोई रूल है कि होम पेज में क्या रहना चाहिए? रूल तो नहीं बोलूंगा अंकुर भैया, बट आइडियली आपके बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, और आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हम वेबसाइट क्यों बना रहे हैं. हम वेबसाइट इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो सके. इफ समबडी इज सर्चिंग फॉर आवर बिजनेस ऑन गूगल, दे गेट डायरेक्टेड टू आवर वेबसाइट. एंड इन ऑर्डर टू डू दैट, so I won't get into the technical details of how your website can rank, in the top 5 rankings on the Google's first page. But मैं एक आइडियल प्रैक्टिस आपको बताता हूँ. अगर आप कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं अपने बिजनेस के, जैसे फॉर एग्जांपल अंकुर भैया का फर्नीचर स्टोर का जो वेबसाइट है उसमें, और अंकुर भैया स्पेशलाइजेस इन ergonomic products. So ideally Ankur Bhaiya did the right thing by mentioning ergonomic products for the workaholic in you. तो ये जो कंटेंट है जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया है, this content is important. Similarly this image is important because Google के जो रोबोट्स होते हैं, Google के जो वेबसाइट क्रॉलर्स होते हैं, वो आपकी वेबसाइट पर इमेजेस और कंटेंट ये दोनों स्कैन करते हैं. Okay. So once Google will scan an image of an office chair and a workstation, Google will be assured that you are giving out the right information about your business. Why don't you put this thing in that website you are creating? Yes. So I'll just go through it once. So this is the image of Ankur Bhaiya's showroom. It's a 360-degree image which we got. Yes. So interestingly, I'll tell you why I put this here. कई बार क्या होता है ना, हमारी वेबसाइट बड़ी फ्लैशी रहती है और लोग जब हम किसी के ऑफिस जाते हैं तो दिखता है वेबसाइट कुछ थी और जगह कुछ थी. करेक्ट. तो मैंने इसलिए मेरी जगह भी दिखा दी कि भाई अगर आपको वेबसाइट फ्लैशी भी दिख रही है तो मेरा शोरूम ऐसा दिखता है. So people know that what I do in a more realistic manner. Correct. So that was the idea behind putting this 360-degree thing. Right. तो आपके पास ऐसा 360 बना हुआ है आपके गूगल में तो it can be linked here. That is right. नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर अंकुर भैया ने अपना इंस्टाग्राम फीड जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है. सो एज एंड व्हेन अंकुर भैया अपडेट्स हिज इंस्टाग्राम अकाउंट, द पोस्ट विल अपीयर ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. स्वरूप, एक सवाल है, क्या हम वीडियो डाल सकते हैं? हाँ, हम लोग वीडियोस डाल सकते हैं होम पेज पर. अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो आप डायरेक्टली एम्बेड कर सकते हो उन वीडियोस को होम पेज पर. If you don't have a YouTube channel, what you can do is you can upload these videos in the backend of Wix, जो कि बहुत ही easy काम है. Again, a drag and drop functionality. और उन videos को उसके बाद you can make them playable on the home page of your website. हमारे वेबसाइट शुरू होते साथ शुरू हो जाएंगे, ऑटो प्ले रहेंगे. ये फंक्शनैलिटी जो है आपको टेस्ट करनी पड़ेगी. Sometimes these videos might be auto play, but as far as I know, these videos need to be clicked. See, actually मेरे को क्या लगता है कि क्योंकि once you start you play something तो वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है. हाँ. तो हम अवॉइडिंग दैट. अच्छा, इसमें भी एक और चीज होती है ना कि आपकी वेबसाइट कितनी हैवी है, उसमें कितना फ्रंट पेज में कितना कंटेंट है, उससे एग्जैक्टली. हाँ. तो अगर आपकी इमेज, मान लीजिए एक इमेज आप यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे होम पेज पे, और उसका इमेज का साइज है 5 MB, और वहीं पर अगर आप एक ऐसी इमेज यूज कर रहे हैं जिसका इमेज साइज है 500 KB, सो इफ यू आर यूजिंग एन इमेज ऑफ 500 KB, योर वेबसाइट विल लोड फास्टर. और गूगल जो है वो ये सारी चीजों को कंसिडर करता है कि आपका वेबसाइट कितना फास्ट लोड होता है, आपके वेबसाइट पर कंटेंट कैसा है, इमेजेस कैसी है, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया. All these things are taken into account. So the faster your website's load speed is, the higher the chances are that your website might show up on the first page of Google itself. और basically आप customer viewpoint से अगर देखेंगे तो if I am your customer, if I want to if I'm on your website, if I log on to your website, I won't like it if it takes 2 or 3 minutes to load the home page. Whereas I would be really happy if I get the information faster. So because instead of loading the videos, it is always good to embed it. Yes.
It's always good to use a Stored link YouTube और link. आपको सिर्फ लिंक लगानी रहती है. हाँ, उसमें YouTube का एक नेटिव प्लेयर रहता है. What you have to do is you just have to mention the URL of your video. आपको आपके वीडियो का सिर्फ लिंक वहां पर पेस्ट करना होता है और वो कर देता है. हाँ, और वो बाकी सारा काम विक्स कर देता है. और अगर कोई डाउट हो तो आप विक्स के ये भी ट्यूटोरियल्स और ये सब देख सकते हैं. हाँ, विक्स के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं. विक्स का सपोर्ट टीम है, उनके साथ चैट कर सकते हैं. ओके. So I'll come down and यहाँ पर एक सेक्शन है जो अंकुर भैया ने बनाया है, which has a few numbers and numbers on the left side and a description on the right hand side. So I'll just go through one of them. जैसे कि अंकुर भैया ने एक स्टैटिस्टिक बताया था कि he has sold 10,000 plus chairs in Nagpur and surrounding areas since the time he started with the business. So basically we wrote 10,000 plus over here, and we wrote chairs sold from basic to high-end products. Our focus is to integrate. These are like USPs. Yes. So if I cut it down, हमारे वेबसाइट में there are front page पे, home page में there are 3 to 4 sections. First is a starting catchphrase kind of thing with a photo, relevant photo. Second phase is a 3D showroom ka view if I have it. If you have something else, your showroom pictures, maybe you can put it there. Professionally clicked pictures. Third thing is Instagram feed, and this हमने तो I remember why I and Swaroop put it. इससे क्या होता है कि बार बार आपकी वेबसाइट पे कुछ नया कंटेंट आते रहता है, क्योंकि आप जो भी इंस्टाग्राम पे ऐड या लाइक करते हैं वो इधर आ जाता है. तो उससे ये वेबसाइट थोड़ी डायनामिक बन जाती है, लोगों को मजा आता है, और गूगल के भी क्रॉलर्स को कुछ नया कंटेंट मिलता है तो दे थिंक द साइट इज अपडेटेड रेगुलरली काइंड ऑफ थिंग. राइट. नेक्स्ट, बिकॉज वी आर हियर टू डू बिजनेस, हमने हमारी यूएसपीज तो एक इजी टू अंडरस्टैंड मेथड पे लिखा. एंड द लास्ट सेक्शन इज आई थिंक द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन. राइट. क्योंकि मैंने रियलाइज किया स्वरूप कि बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा पेजेस में स्क्रॉल होके डिटेल ढूंढने के में इंटरेस्टेड नहीं रहते. करेक्ट. तो इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि होम पेज में ही आप एक कंटेंट का ये रख दीजिए. So you can quickly go to the editor and show people because it's already 3:23. Right. Correct. All right. So ये हम एडिटर में आ गए हैं विक्स के अभी. So why don't you write that ergonomic solution for workaholic in you? Right. So the only thing that I'll need to do is double click on this text box, और उसके बाद मैं अपनी एडिटिंग यहाँ पर शुरू कर सकता हूँ. So I'll write ergonomic products for the workaholic in you. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्कोहॉलिक का LIC जो है वो नीचे आ गया है. So I'll just need to select all of this text. इसको मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इनका. It's as simple as that. It's as simple as using a PowerPoint or a Keynote. So, and I can change the image as well. Absolutely, you can change the images as well. यहाँ पर change images का ऑप्शन आपको दिया हुआ है. इमेज पे क्लिक करो तो ऊपर उसके ऑप्शंस आ जाते हैं. हाँ, आपने इमेज पे क्लिक किया तो ऑप्शंस आपको मिल गए. करेंगे तो उसके ऑप्शंस आ जाएंगे. राइट. और ये जो इमेजेस है तो जी, अगर मुझे मेरे कंप्यूटर से इमेज डालने हैं तो हाँ, मैं वही बता रहा था कि अभी जो है वो स्टॉक इमेजेस है विक्स के. So I'll do it again. If I click on change images, तो ये stock images आ जाते हैं. I'll click on add images. Okay. और जैसे ही मैं add images पे क्लिक करता हूँ तो it gives me an option to upload my own files. Okay. तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि drag and drop files और upload from your computer. So I'll just quickly go ahead and take a few images that we have. तो मैंने कुछ 3 इमेजेस सिलेक्ट कर लिए हैं. इनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लेके आता हूँ. ओके, दैट्स इट. तो अगर आप प्लस ये जो यहाँ पर दिया हुआ था प्लस अपलोड मीडिया, उसको भी क्लिक करेंगे तो यू विल गेट विंडोज एक्सप्लोरर या फिर आपका जो कंप्यूटर का एक्सप्लोरर विंडो है वो खुल जाएगा और आप इजीली नेविगेट करके अपने फाइल्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं. अच्छा, एक और सवाल आया है कि किसी की पिक्चर्स बहुत हेवी है तो उनको कैसे कन्वर्ट करें? तो बहुत सारे रीसाइजिंग टूल्स होते हैं ऑनलाइन. अच्छा.
जस्ट गूगल में आप डाल दीजिए हाउ टू रिसाइज माय इमेज, how to resize my photos, how to resize my images. So you'll only need to upload those images on the on that particular tool, और उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं एक resized image जो कि थोड़ा से कम साइज का है, which will make your website faster. ओके। तो इमेज भारी क्यों होती है, यानी व्हाई इज, यानी हैज इट, तो इज इट टू डू विद द पिक्सेल्स और इज इट टू डू विद द लेंथ एंड विड्थ और बोथ? A bit of both actually. ओके। तो जितने अच्छे कैमरा से फोटोज खींची गई होंगी और अगर कॉम्प्रेस नहीं हुई होंगी फोटोज, तो देयर इज अ हाई चांस दैट दोस फोटोज आर लार्जर इन साइज. ओके, तो ऐसे कोई आप रिसाइजिंग टूल से रिसाइज कर सकते हैं? हाँ. तो अब आई वांट यू टू टेक दिस, जो आपने सिलेक्ट किया है वही वाला फोटो सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो I'll click on add to gallery. हाँ, ये फोटो ऐड हो गया ऑटोमेटिकली. So if I want, I can use only this one. If I can use all of them as a slider, or I can use a single image. मैं एक single image use करता हूँ. मैं title में यहाँ पे लिख देता हूँ office freedom. Okay. If you want, you can write a description as well. आप link दे सकते हो. अब link यहाँ पर इसलिए काम आएगा आपके कि if somebody clicks on that particular image, if you want them to go directly to that particular product page on your website. Okay. So they can go on that product page. Okay. So I'll click on done और ये इमेज यहाँ पर सेट हो गया है. लेकिन यार ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बराबर सेट नहीं हुआ है, इसको थोड़ा जूम करना है या इसको थोड़ा एडिट, तो वो भी होता है कि वो मुझे फिर से कोई इमेज एडिटर से करना पड़ेगा? वो भी इसमें हो जाना चाहिए. लेट्स सी. नहीं, यहाँ से नहीं होगा, आई थिंक वहीं से होता है स्वरूप को. ये जो ऊपर सेटिंग्स में हम लोग गए, उसके बाजू में आई थिंक डिजाइन है, उसके बाजू में अभी okay. तो ये ऑटो क्रॉप पे है ना, ये स्ट्रेच वाला एक ऑप्शन है यहाँ पर. उसके बाजू में एक डिजाइन वाला जो सेकंड ऑप्शन है, डिजाइन. ओके. नहीं, डिजाइन में तो गैलरी का डिजाइन आ जाता है. ओके. सो यू विल हैव टू गो टू सेटिंग्स और यहाँ पे उसने ऑटो क्रॉप जो है वो ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है. अपन फिट करें तो आप अगर फिट सिलेक्ट करते हैं तो वो इमेज यहाँ पर आ जाता है. बट द थिंग इज कि सिंस ये जो पैनल है ये एक स्क्वायर पैनल है और हमारा इमेज एक रेक्टेंगल इमेज है, इसीलिए आपको लेफ्ट और राइट साइड में गैप्स दिख रहे हैं. ठीक है. सो इट्स बेटर दैट यू यूज एन इमेज ऑफ द सेम ओरिएंटेशन एज दैट ऑफ द पैनल, या फिर ऑटो क्रॉप करके. हाँ. कैन यू गिव मी द रिमोट कंट्रोल करके एक बटन रहेगा नीचे, मोर में जाओगे ना आप, हाँ, तो उसमें आपको एक रिमोट कंट्रोल करके एक बटन मिलेगा, आई थिंक. नहीं है क्या? यस, रिमोट कंट्रोल. कैन यू गिव मी द कंट्रोल ऑफ द? यस, डन. कैन यू सी माय माउस मूविंग? नो, आई कांट सी योर माउस मूविंग. अच्छा, it says Ankur Khemka is controlling your screen. So if I go to the settings part of it and I just go to the image and वो कहाँ गया आपका यार? ऑटो क्रॉप ऊपर है थोड़ा सा. हाँ, ये. and then I just put how to save it. इसके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए अंकुर, थोड़ा सा आप कर दो. हाँ, ये यहाँ पर ऑटो क्रॉप. ओके, राइट. यार लेकिन if I'm not wrong यहाँ पे एक एडिट और क्रॉपिंग का फीचर भी आता था. हाँ, वो हो सकता है कि ये टेम्पलेट में मिसिंग हो. ओके, तो शायद यहाँ पे आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. एग्जैक्टली. क्योंकि ये जो पैनल है अंकुर भैया, ये गैलरी है, तो यहाँ पर जो है ये 3 इमेजेस का सेट यहाँ पर जो है इंक्लूड कर सकते हैं. तो आई थिंक चेंज होते रहेगी, इसीलिए उन्होंने वो फंक्शनैलिटी इस थीम में नहीं दी है. मे बी दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग. ओके. अच्छा, ये तो हो गया. नेक्स्ट क्या करना है इसको? ठीक है, अभी आप नीचे आएंगे, आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस डाल सकते हैं यहाँ पे. आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेट्स नॉट वेस्ट पीपल. राइट. बस ऐसे ही जाके इमेज एक बार यहाँ पे देख लो, कोई इमेज का अपन एडिट या क्रॉपिंग कर सकते हैं क्या? ठीक है, I'll just check.
तो बेसिकली आई थिंक ये जो थीम है, ये जो टेम्पलेट है अंकुर भैया, ये काफी प्रोडक्ट ओरिएंटेड एक टेम्पलेट है। ओके तो यहाँ पर भी जैसे हमने ये सेक्शन को खोला तो वो प्रोडक्ट विजेट बोलता है हम लोगों को। तो प्रोडक्ट विजेट जो है, इट बेसिकली विल कनेक्ट यू टू a page inside your website which is about your product. राइट, ग्रेट, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ इमेजेस भी डाल सकते हैं। हाँ। अच्छा स्वरूप, अगर मुझे एक टेम्पलेट में से जैसे ये वाला सेक्शन मुझे नहीं चाहिए इस टेम्पलेट का, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ? हाँ, आप सेक्शन को, पूरे सेक्शन को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। सो इफ यू गो टू मेन्यूज एंड पेजेस, हाँ, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे होंगे कि कितने पेजेस हैं यहाँ पे। राइट। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई डोंट वांट द सेक्शन कॉल्ड डेकोर, हाँ, तो मैं इसके यहाँ पर 3 डॉट्स जो है इसके राइट साइड में, इस पे क्लिक करता हूँ। नहीं, और मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं बोल रहा था जैसे होम पेज में जाइए आप। हाँ, अब होम पेज नहीं गए आप, ये डेकर में आ गए थे। ओके, खैर लीव इट भी, आप डेकर पे ही रहिए, नीचे जाइए एक बार। आई थिंक आई डिलीटेड द होम पेज बाय मिस्टेक। अच्छा, नहीं, हाँ, आ गया होम पेज। ठीक है, अब इसमें नीचे जाइए। अब ये डेकोर वाला सेक्शन ही नहीं चाहिए मुझे होम पेज में। अच्छा, तो मैं वो डिलीट कर सकता हूँ क्या? ये हाँ, हाँ कर सकते हैं आप डिलीट। So if I go here, हाँ, सिलेक्ट करना पड़ेगा इसे। हाँ, तो आप एक एक चीज सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं इफ यू वांट। ओके, बट आई थिंक द आइडियल थिंग टू डू वुड बी कि आप यहाँ से ही उसको हटा दें। अच्छा, डेकर को ही डिलीट कर दे पेज। हाँ, आप बेसिकली डेकोर के पेज को जब डिलीट करते हैं तो वो आपके होम पेज से ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो नाउ इट सेज व्हेन यू डिलीट द डेकोर पेज योर विक्स स्टोर्स ऐप विल आल्सो बी डिलीटेड। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो थीम है और ये टेम्पलेट है, ये काफी प्रोडक्ट ओरिएंटेड टेम्पलेट है। आई थिंक ये ई कॉमर्स ओरिएंटेड भी है, ऊपर कार्ट वार्ट भी दिख रहा है। हाँ, हाँ, तो इसको डिलीट कर देंगे अगर हम, तो ये यहां से हट जाएगा। एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लगता है स्वरूप कि इट इज नॉट नेसेसरी टू कमिट टू वन थीम। अगर आपको लग रहा है वो थीम में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो आप फिर अपने ओरिजिनल दूसरी थीम पे भी जा सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यू कैन चूज अ मोर सिंपलर थीम और अ थीम व्हिच सॉल्व्स योर पर्पस। ग्रेट। तो बेसिकली हमने यहाँ से डेकोर का पूरा जो सेक्शन था वो हटा दिया है। अब जो छोटे छोटे चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पैनल है, इसको मैंने हटा दिया। अब ये जो गैप है इसको कम करनी है, तो ये गैप को आपको कम करनी है तो आपको सिर्फ नीचे से ऊपर ड्रैग करके लाना पड़ेगा चीजों को। सो अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमारे होम पेज पे कुछ भी नहीं बचा। नाउ इट्स अ क्लीन स्लेट। ओके, और हमने डिलीट कर दिया तो सब डिलीट भी हो गया। हाँ, और अभी इफ आई वांट टू ऐड समथिंग ओवर हियर, आई विल क्लिक ऑन ऐड। ओके, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में मुझे बहुत सारे ऑप्शंस देता है कि मुझे क्या ऐड करना है यहाँ पे। डू आई वांट एन इमेज, डू आई वांट अ गैलरी, डू आई वांट अ शेप, डू आई वांट अ बॉक्स। सो लेट्स, मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे ना वो इंस्टाग्राम का फीड ऐड करना सिखा दें हमको। ठीक है, ऑल राइट। सो आई विल गो ऑन सोशल। ओके, अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया के लिंक्स और सोशल मीडिया की फीड वहां पर इंक्लूड करना है, सो विल हैव टू गो टू सोशल। आई गो टू सोशल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको कौन सा सोशल मीडिया चैनल जो है यहाँ पर आपको वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना है। ये तो सोशल मीडिया बार है। हाँ, ये बटन है आई थिंक स्वरूप। एक सेकेंड, ये वाली चीजें चाहिए ना हमको। हाँ, सोशल मीडिया स्ट्रीम। ओके, तो बेसिकली आपको एक छोटा सा ऐप ऐड करना होगा। ओके, तो ये ऐप डायरेक्टली आपके होम पेज पर आ जाएगा। ओके, तो what I'll do first is मैं थोड़ी सी पेज की हाइट बढ़ा दूंगा टू एडजस्ट द स्ट्रीम। ओके, तो आप जितने भी बार आप कोई भी ऑप्शन पे होवर जब करते हैं, तब आपको उस ऑप्शन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो विक्स देता है। तो इफ इट सेज एडजस्ट पेज हाइट, देन आई एम श्योर दैट इट विल एडजस्ट द पेज हाइट। ओके,
So the idea is to hover on every kind of options that you get. If you're starting out, it is especially essential for you to hover on every option you get to understand what that particular function will do. Okay, अब एक बार वो ऊपर की अच्छा इसमें जैसे 6-7 चीजें आ रही है, हाँ, तो अपन कम भी कर सकते हैं. हाँ, इसको आप कम भी कर सकते हो. इसको आप सिर्फ एक रो अगर आपको रखना है, आपको 2 रोज रखने हैं, तो आप वो भी कर सकते हो. तो इस सेक्शन में जाके इसके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा. हाँ, आप इसके सेटिंग्स में गए. ओके, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना लिंक ऐड कर दिया, so that automatically it will create a link for you. If I create ad feed, I choose a social media network, say Instagram. I connect my personal profile. तो ये मुझे बेसिकली ऑथराइजेशन के पेज पे लेके जाता है. I'll authorize it. ग्रेट. तो ये सब करने में पहले जो कोडिंग करनी पड़ती थी, अब कोई कोडिंग नहीं करनी. अब आपको कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है. तो I have chosen my feed right now. ओके, तो अब यहाँ पे वो बोलता है कि पोस्ट टू शो, इट सेज 18. अब जैसे अब बेसिकली ये वाला जो ऐप है यहाँ पे सोशल मीडिया स्ट्रीम का ऐप, एक टाइम के बाद इट्स अ प्रीमियम ऐप, सो यू विल हैव टू पे फॉर इट. अदरवाइज आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे अगर आपने पे नहीं किया तो. लेकिन कई सारी थीम्स में ऐसी भी फंक्शनैलिटी है कि आप बिना पे किए ही उसमें जो है उसके रोज और कॉलम्स को कम कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है, डन. So this is how you create a social media link, social media stream on your home page. एंड देन जो हम थर्ड चीज डालना चाह रहे थे, कुछ यूएसपीस डालना चाह रहे थे. हाँ, तो हम उसको किस तरीके से लिखें? राइट. तो हम टेक्स्ट में अगर जाएंगे, हाँ, तो हम either you can use some text if you want, या फिर you can use images, या फिर you can use a combination of images and texts. So let's go with text. ओके, तो मैं एक हेडिंग का टेक्स्ट ले लेता हूं यहाँ पर. ओके, मैंने इसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में अलाइन कर दिया. ओके. और ये रूलर्स के जो गाइड्स है, पिंक कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, वर्टिकल लाइन. सो दीज आर ऑल गाइड्स टू हेल्प यू अलाइन योर कंटेंट. ओके, तो वहां पे भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज नहीं करनी पड़ती है. आप करेक्ट. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ RUSP. I'll सिलेक्ट करके काम करना पड़ेगा. हाँ, मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर दूंगा. ये हमारी हेडिंग हो गई. सिमिलरली यू विल ऐड अ शॉर्टर हेडिंग. ओके, और फिर आप जो भी यूएसपी लिखना चाहते हैं लिखते हैं. आप जो भी USP लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं उसके बाद. या आप एक इमेज के बाजू में कुछ लिखना चाहते हैं तो वैसा, जैसे हमने 10,000 प्लस लेफ्ट में लिखा है और राइट पे हमने उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिखा. करेक्ट. इमेज भी डाल सकते थे. हाँ, ओके. और ऐसे कुछ आई थिंक ऑलरेडी प्री डिसाइडेड शेप्स एंड वेक्टर्स कुछ तो भी रहते भी होंगे इसमें. हाँ रहते हैं. ये जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर थीम, वेक्टर आर्ट, हाँ, शेप्स. तो बेसिकली आपको यहाँ पर बेसिक शेप्स मिल रहे हैं. हाँ, तो आप ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं. हाँ, ये जैसे आपने स्लाइड शो यहाँ पर डाला एक. हाँ, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई. हाँ, आगे. So you can put all, नीचे चला गया स्लाइड. yes. So you can put all these things over here. अब जैसे आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल इफ वी आर फर्नीचर स्टोर के बारे में अगर लिख रहे हैं, तो वी आर प्रीमियम ऑफिस फर्नीचर स्टोर. इन शॉर्ट, एनीवन हु इज यूजिंग विक्स को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा टू. एग्जैक्टली. अच्छा, चलिए, ये तो आई थिंक काफी डिटेलिंग हो गई. हाँ. तो अगर हम एक थंब रूल बनाए तो होम पेज में आपकी एक फोटो, ये ना कोई प्रोडक्ट रिलेटेड फोटो, आपके शोरूम का फोटो रहे. हाँ. कुछ स्मार्ट तरीके से टेक्स्ट लिख दे. हाँ. उसके बाद आपके यूएसपी लिख दें और नीचे कॉन्टैक्ट. अच्छा, एक बार वो कॉन्टैक्ट्स को आप एडिट करके दिखा दीजिए. तो फिर कॉन्टैक्ट्स एडिट करके दिखाता हूँ मैं. तो अभी यहाँ पर जो है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है, तो हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर देते हैं यहाँ पे. आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं सोशल के जस्ट नीचे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन है हमारे पास.
तो I'll choose a contact form. ऊपर चला गया है। हाँ, ये यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारा आ गया। तो अगेन व्हाट आई विल डू इज, मैं थोड़ी सी पेज हाइट को एडजस्ट करूंगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आपको पेज हाइट थोड़ी सी एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, नहीं तो ओवरलैपिंग हो जाएगा। हाँ, अब मैं यहाँ पर जाके इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। आई थिंक ये हम स्क्रीन शेयरिंग पे कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा राइट। इनके भी नेचुरली नीडलेस टू से कलर्स वलर्स चेंज कर सकते हैं। आप सभी कुछ इसमें एडिटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे कोई डेटा डालेगा तो हमको एक ईमेल आ जाएगा उसका। राइट राइट। ओके, आप अपना ईमेल भी कॉन्फ़िगर, जो ईमेल से आपने लॉगिन किया है आपको उसी ईमेल एड्रेस पे जो भी इंसान इस पर इंक्वायरी करता है अपनी, उसके डिटेल्स आपको आपके ईमेल पे मिल जाएंगे। और नीचे आप अगर यहाँ पे ये जो सेक्शन है यहाँ पे अगर अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देते हैं, हाँ, तो आई थिंक बस सारे सेक्शंस में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। राइट राइट राइट। इवन अगर आप फेसबुक पिंटरेस्ट भी यहाँ पे डाल देते हैं तो सारे इसमें एक साथ चेंज हो जाता है। करेक्ट, क्योंकि ये फुटर सेक्शन है वेबसाइट का। दिस फुटर सेक्शन विल बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल द पेजेस ऑफ योर वेबसाइट। जैसे अपने वर्ड में हेडर और फुटर कंसिस्टेंट रहता है सारे सेक्शंस में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये सेम फंक्शनैलिटी है। चेंज नहीं करना पड़ता, एक ही बार करने से हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस और अपने सोशल लिंक्स और अपने ईमेल एड्रेस। हाँ, अब जैसे यहाँ पर सोशल बार यहाँ पर दिया हुआ है, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, यहाँ पर सेट सोशल लिंक्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो प्रॉम्प्ट करेगा कि आपको कौन सा लिंक आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर अभी विक्स का लिंक है, तो यहाँ पर आप अपने फेसबुक पेज का या फिर आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक, नागपुर, एर्गोनॉमिक्स नागपुर, बीच में डॉट है अंकुर भैया? नहीं, आई डोंट थिंक इसमें डॉट है। ओके, एर्गोनॉमिक्स नागपुर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चूज करूंगा हाउ डज इट ओपन। सो आई विल ऑलवेज चूज to open the link in the new window, क्योंकि I don't want any of my website visitors to go to Facebook or migrate to any other website. हमारा पेज ना छोड़े। हाँ, और सिमिलरली आप अगर कोई भी लिंक अगर डाल रहे हैं तो आप ये भी उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उस ऑप्शन में कि आप डॉक्यूमेंट का डाउनलोड, वहां पर डॉक्यूमेंट की डाउनलोड लिंक आप डाल दें। अगर मेरा कैटलॉग का मेरे पास ऑलरेडी एक पीडीएफ फाइल है तो मैं उसका डॉक्यूमेंट का लिंक डाल सकता हूँ। एग्जैक्टली, आप एक सिंपल एक आप वहाँ पे लिंक वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एक बटन बना सकते हैं विच सेज डाउनलोड माय ब्रोशर या फिर डाउनलोड आवर प्रोडक्ट ब्रोशर नाउ, whenever somebody clicks on that link। जी अंकुर भैया, बटन का थीम भी हमको ऐड वाले सेक्शन में मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, यहाँ पर मैं डन करता हूँ। तो बेसिकली ये आइडिया है वेबसाइट क्रिएशन का। आई विल डू वन थिंग, आई विल सेव इट नाउ। सेविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसी तरह आप, अच्छा अगर मेरे को दूसरा सेक्शन चेंज करना है तो वो एक बार बता दो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं जाके, हाँ, अगर आपको दूसरा पेज या दूसरा सेक्शन चेंज करना है तो ये छोड़ो, एक बार आप बंद करिए। हाँ, बिकॉज यू नो यू आर डूइंग इट। राइट, आई वांट टू चेंज द होम सेक्शन। राइट, तो मैं यहाँ से होम पे दबाऊंगा तो नहीं जाता है? नहीं। अच्छा, आपको लेफ्ट साइड में जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है मेन्यूज एंड पेजेस, आपको वहां पर जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे अबाउट में जाइए अभी। अबाउट, तो ये बेसिकली आपके वेबसाइट का अबाउट पेज आ गया। ओके, तो सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्शन इज द अबाउट सेक्शन। यस, एब्सोल्युटली। अबाउट में तो टू सेव टाइम मैं थोड़ा क्विकली बोलता हूँ। हाँ, अबाउट में, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अबाउट में आपके 2-4 फोटोज होने चाहिए। आपका क्या कहना है स्वरूप? हाँ, अबाउट में आपके कंपनी के कुछ इमेजेस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कुछ शोरूम की इमेजेस है तो आप वो डाल दीजिए।
आपके खुद के इमेजेस है वो आप डाल सकते हैं. Suppose if you're a second generation businessman or a businesswoman, so it would be ideal to include pictures of your parents as well over there. या आर टीम करके अपने, अगर आप फैमिली बिजनेस में और आपके 3-4 लोग हैं तो आप उनके और छोटा सा प्रोफाइल डाल दें. Exactly. So the idea here is to tell the story of your business. So for example, अगर आपका business 1990s में शुरू हुआ था, तो आप लिखेंगे कि we started off with ergonomics in 1991, और उसके बाद we've come a long way in delivering amazing products and durable products to our clients. Over time, we have received content here so that people can read about our company and in detail. Exactly. But अगर हमने इसको केयरफुली हमने अपने कीवर्ड्स यहाँ पे भी डाले तो गूगल के क्रॉलर्स वो भी पकड़ लेंगे. Exactly. तो यहाँ पर भी अगर आपने थोड़ा बहुत अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मेंशन किया, तो गूगल के जो क्रॉलर्स है वो क्योंकि पूरी वेबसाइट के पेजेस क्रॉल करते हैं, तो दे विल डेफिनेटली पिक अप द इंफॉर्मेशन दैट इज मेंशन्ड इन द अबाउट पेज आल्सो. अच्छा, अब मेरा एक दूसरा सवाल है स्वरूप. हाँ. कि बेसिक समस्या क्या होती है कि हमारे बिजनेसेस में, देख ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, वी आर ऑल वेल एजुकेटेड, बट ओनली प्रॉब्लम इज कि अब वो लिंक टूट गया है यार लिखने का और सोचने का. ठीक है. तो जब हम एक डिजाइनर हायर करते हैं ना, तो वो ये सारा काम हमारे लिए करना चाहिए, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ. करेक्ट. कंटेंट लिखना. और बट अगेन क्योंकि डिजाइनर जब जिसको हम हायर करते हैं वो बहुत ज्यादा पैसे मांगता है, तो हम वो कर नहीं पाते. राइट. नाउ यू डिड ऑल दिस थिंग फॉर मी, मेरे अबाउट अस और वो सारे कंटेंट तुमने लिखे थे. करेक्ट. So is it okay if I share that you do it and how much you charge for it? Absolutely, Ankur. Please go ahead. So normally the way Swaroop charges is कि वो आपके लिए सब कंटेंट लिख के दे देगा, आप बता दीजिए क्या क्या कंटेंट लिखना है और वो लिख के दे देता है. And he charged me around $1,000 for it, जिसमें उसने मेरे अबाउट अस और होम पेज के सारे कंटेंट लिखे थे. बट स्वरूप ऑनेस्टली बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, मैंने 1,000 रुपए दे दिए आपको, लेकिन लोगों का थोड़ा सा ऐसा इच्छा होती है कि कुछ और डिस्काउंट मिल जाए इस पे. बेसिक आप समझो प्रॉब्लम क्या है कि अब बिजनेसमैन ऐसा नहीं है कि उसको आपको पैसे नहीं देने. करेक्ट. प्रॉब्लम ये होता है कि बिजनेसमैन हमेशा सोचता है कि कैसे मैं 2 पैसे बचा लूं. बिल्कुल. तो ऐसे में फॉर द betterment of our viewers, can you give us an offer? Right. So Ankur भैया, usually जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा working style is, I come down to your office, I sit with you for about an hour, I brainstorm कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए, आपके बिजनेस के बारे में आपसे पूछता हूँ, आपसे सारी जानकारी लेता हूँ, and only then I create that particular content and write that particular content. So right now, since most of the businesses are shut, so it's not possible for us to meet. So what I can do is I can write content for these 4 main pages, which is the home section, about section, and a few products and services ka description. I can do that for 50% discount. तो 500 rupees में मैं घर से ये चीज आपको करके दे सकता हूँ. But उसमें the catch is कि you will have to be on a call with me, you will have to be on a meeting with me for say 1 hour, जहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आपके बिजनेस के बारे में. Zoom meeting. हाँ, तो बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चनर रहेगा मेरा, जो आपको आंसर करना पड़ेगा. यू हैव टू बेयर विथ मी थ्रू द क्वेश्चनर. आपको वो सारे आंसर्स देने होंगे. उसके बाद ही क्योंकि जो है मैं आपके बिजनेस और प्रोडक्ट समझ के उनके बारे में लिख सकता हूँ. तो माय सजेशन हियर टू ऑल द अटेंडीज इज कि स्टार्ट राइटिंग ऑन योर ओन. कहीं अटक गए और आपको लग रहा है कि आपको नहीं जम रहा है, तो आप स्वरूप को कॉल कर सकते हैं, he will help you out. Right. But again, my thing to tell you is Swaroop is not a website designer. Right. He is a content writer. ये तो his experience, our experience we are sharing. तो अगर आप बोलोगे कि स्वरूप आप मेरी वेबसाइट बना दो, तो वो आपसे उतने ही पैसे ले लेगा जो एक अच्छा वेबसाइट डिजाइनर ले लेता है. तो you should hire them instead of him, जो आपके BNI चैप्टर में भी हो सकते हैं. Right. हाँ, कहीं कुछ कंटेंट लिखना है छोटा मोटा तो स्वरूप कर सकता है. स्वरूप आपका नंबर और वो प्लीज ईमेल एड्रेस एंड नंबर प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए. राइट. तो पीपल विल, दो एनीवन हु वांट्स इट कैन सेव इट. हैविंग सेड ऑल दिस स्वरूप,
So this is basically more or less of exploring the Wix template. आप खुद से template explore कर लीजिए, आप सब चीज कर पाएंगे. Correct. Let's move to the next section, if you permit, is how to publish this. Right. तो क्या हुआ अगर अपन मेरे ओरिजिनल जार्गन्स में गए. हाँ. तो अभी हमने डिजाइनर, कॉन्ट्रैक्टर, लैंग्वेज करके एक घर तो बना लिया, एक साइट तो हमने साइट तो हमने रेडी कर दी. Correct. लेकिन वो जो एड्रेस वाला पार्ट था, हाँ. डोमेन और वो, हाँ. if you don't mind, I would like to take Yes, it. absolutely. Please, please, Ankur. क्योंकि क्या बढ़िया आदमी है. Correct. थोड़ा पैसों की बात करना मुझे अच्छा लगता है. Correct. अच्छा, अंकुर भाई, I would like to address a concern raised by Miss Divya Nankani. तो वो पूछ रहे हैं कि can this website be hacked easily? I would like to mention कि Wix के पास सारे security certificates जो होते हैं, essential security certificates, that those are in place. So I don't think this website can be hacked easily. If you use a strong password, तो I don't think there should be a problem. I don't think Wix को देखिए कि Wix हैकिंग का क्या मतलब है. हैकिंग का मतलब है ये डेटा हटा के कोई अपना डेटा डाल दे, तो वो नहीं हो सकता इजीली. जितना डिफिकल्ट आपका गूगल का जीमेल हैक करना है, उतना ही डिफिकल्ट विक्स को हैक करना है. करेक्ट. और हाँ, कोई इसमें से डेटा कॉपी कर सकता है, तो हाँ वो कर ही सकता है नेचुरली. हाँ. लेके हाउ टू मेक अ ईमेल आईडी थ्रू दिस वेबसाइट, सर वो भी मैं आगे बताऊंगा. दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. स्वरूप, मैं आपको शेरा मैम का नंबर दे दूंगा. शेरा मैम ने पूछा है कि डू यू राइट ब्लॉग्स, वो आप पर्सनली बात करें. डेफिनेटली. सेकंड, तो वंस यू डू ऑल दिस, एक और चीज हाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि यहाँ ऊपर ना एक मोबाइल व्यू वाला भी ऑप्शन है. ठीक है, ये मोबाइल व्यू पे आप क्लिक करेंगे. स्वरूप, कैन यू क्लिक इट फॉर मी? राइट. ये स्विच टू मोबाइल व्यू आ जाता है. स्वरूप, मेरे से हो नहीं रहा है, शायद आपका. मैंने क्लिक किया अंकुर भैया, एक सेकंड. हाँ, आया. तो आपकी साइट मोबाइल पे कैसे दिख रही है, ये वाला एक सेक्शन आ जाता है. स्वरूप, कैन यू टेक ओवर, मेरे यहाँ से चल नहीं रहा. हाँ. सो बेसिकली आप, क्योंकि कई सारे लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे ही आजकल वेबसाइट्स देख रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं. सो इट्स हाईली इंपॉर्टेंट कि आपका वेबसाइट मोबाइल पे कैसे दिखे, आप उसको भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करें. तो आप यहाँ पर जो है लेट्स गो, इस पे क्लिक कर सकते हैं व्हेन यू आर हियर. सो इट विल गिव यू एन ऑप्शन टू कस्टमाइज योर वेबसाइट इन टर्म्स ऑफ द मोबाइल व्यू. तो यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शंस है कि आपको फ्लोटिंग बटन्स चाहिए आपकी वेबसाइट पे, या फिक्स बटन्स बॉटम पे चाहिए, या फिर कोई भी एक्शन बार नहीं चाहिए. सो फॉर राइट नाउ आई विल चूज फ्लोटिंग बटन्स. Now it is asking me, do you want a back to the top button? So I'll go with yes, I want a back to the top button. तो like I said कि यहाँ पर tutorials आपको सारे मिलेंगे Wix के, which you can easily follow. I'll go to mobile editor. So basically this is how my website looks on a mobile device. तो अगर मैं back to the top button को क्लिक करूंगा, तो मैंने अगर नीचे स्क्रॉल किया है और मैं इस पे क्लिक करता हूं अगर, तो मुझे सीधा वो सबसे ऊपर जो है वेबसाइट के वो लेके चले जाएगा ऑटोमेटिकली. तो और यहाँ मोबाइल पे रहेगा ही ना ऑलरेडी. हाँ. ओके. तो यहाँ पर अगर आपको कोई कंटेंट जो है अगर आपको मोबाइल पे नहीं दिखाना है किसी को, मान लीजिए, तो यू कैन क्लिक दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट, और आपको यहाँ पर हाइड एलिमेंट ये एक ऑप्शन मिलता है. तो इफ यू चूज दिस, तो ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट है ये आपको मोबाइल पे नहीं दिखेगा, ये आपको सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखेगा. Okay. So this is a wonderful feature. I think you can make use of it. So once all this is done, we will need to publish it, right? Right. तो एक बार आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं कैसा हो रहा है. नहीं, go to the publish button and publish it. Right. So let's look at the preview. तो ये आपको मोबाइल पर प्रीव्यू दिख रहा है अभी यहाँ पर. They have a mock mobile phone ready. तो ये आपको इससे दिख जाएगा. और if I go to a desktop view,
तो इट विल शो मी कि डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा विक्स वेबसाइट। ओके, अब मेरा काम शुरू होता है। हाँ भैया, ये जो ऊपर लिख के आ रहा है, अपग्रेड योर वेबसाइट टू रिमूव विक्स एड। सी व्हाट हैपेंस इज, स्वरूप, if you can open a website called Ankur Khemuka wixsite.com/, तो ये एक मैंने छोटा सा बना के पब्लिश किया था। हाँ, और मैंने जानबूझ के, क्योंकि वो एक छोटे से काम के लिए था, तो मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो इसमें ऊपर ये ऐड लिख के आती है, दिस साइट वाज डिजाइंड विद wix.com स्टार्ट। एग्जैक्टली, राइट राइट। और यहाँ पे ये जो डोमेन का डिटेल आता है, ये भी विक्स के थ्रू का आता है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, इफ यू वांट कि ये सब हट जाए और आपके वेबसाइट रहे, तो आपको ये पूछता है कि आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं। विक्स, ये एक्चुअली ऐप वाला प्लान, ऐप के प्लान में आ गए हमको भैया, ये वेबसाइट का प्लान नहीं है। ठीक है। स्वरूप, मैं एक बार ना इसको बंद कर रहा हूँ। हाँ हाँ प्लीज। आपका शेयरिंग बंद करता हूँ मैं। हाँ, आई विल शेयर माई स्क्रीन। राइट। wix.com पे मैं गया। क्योंकि मेरा विक्स ऑलरेडी कनेक्टेड है, वो फटाफट हो जाएगा। और कल मैंने ऐसी ट्रायल के लिए ये एक सिलेक्ट एंड एडिट साइट बनाया था। यहाँ पे मैं ये साइट पे साइट एक्शन में जाके इसको प्रीव्यू, साइट एक्शन में जाके आई विल जस्ट गो टू प्रीव्यू साइट, तो इसको एडिट साइट कर लेते हैं ताकि वो खुल जाए। अब जो दीपेश ने पूछा कि क्या हम वेबसाइट में डायरेक्ट ईमेल बना सकते हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड, जो ईमेल है ना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपने जगह का एड्रेस तो दे दिया, लेकिन अब आप आपने एक बड़ा घर खरीद लिया है, बड़ा प्लॉट खरीद लिया है, और अब आप उसको पॉइंट करना चाहते हो कि भैया अब जो मैसेजेस है वो सारे अंकुर को जाए, या फिर सारे मैसेजेस स्वरूप को जाए। तो इसके लिए अगेन होस्टिंग और वो वाली कहानी करनी पड़ती है। easier way to do it with Wix is कि you buy it from Wix, तो Wix गूगल सूट्स के साथ कनेक्ट करेगा और फिर आपको ईमेल दे देगा। बट Wix के थ्रू गूगल सूट खरीदना थोड़ा सा महंगा है, हमने रियलाइज किया। गूगल अभी 125 रुपए महीने के रेट पे आपको ऑलरेडी दे रहा है टू बाय। तो मैं दिखा भी देता हूँ वो चीज। तो इफ यू पब्लिश इट हियर, और ये बोलता है, एक तो रहता है यूज अ फ्री विक्स डोमेन, तो ये आएगा ankurkhemka.wixsite.com/website3। और अगर मुझे मेरा चाहिए तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके पब्लिश एंड कंटिन्यू करूंगा। तो ये बोलेगा कि आपके पास कोई डोमेन तो है नहीं, तो हाउ विल यू पब्लिश। मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, आई थिंक थोड़ा सा। तो आई थिंक दिस एड्रेसेस चेतन's क्वेरी। चेतन पूछ रहे थे कि क्या आप एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट को विक्स से एडिट कर सकते हैं? सर, आप एग्जिस्टिंग वेबसाइट को नहीं एडिट कर पाएंगे। हाँ, आप विक्स पे एक नई वेबसाइट बना सकते हैं और उसको अपने एग्जिस्टिंग डोमेन पे पब्लिश कर सकते हैं। राइट। अब वो डोमेन आपने किससे लिया है? अगर आपने GoDaddy से लिया है तो करना आसान है। अगर आपने, तो हर डोमेन का आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए।
वो यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू उसकी सेटिंग्स में जाके आप वो चेंजेस कर सकते हैं. इट इज टेक्निकली पॉसिबल. अब हर एक का इंटरफेस अलग रहता है तो हर एक का तरीका अलग रहेगा, लेकिन यस, यू कैन क्रिएट अ न्यू वेबसाइट ऑन विक्स. अब आप विक्स से अपने वेबसाइट बनाइए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको विक्स से ही डोमेन खरीदना है, आप कहीं और से भी खरीद के उसको लिंक कर सकते हैं. गोडैडी में थोड़ा आसान होता है और कई लोग, ज्यादातर लोग आजकल गोडैडी से ही खरीदते हैं. यार मुझे नहीं मालूम, ये कुछ मेरे इसमें हैंग हो गया है दिख रहा है. Okay. Do you want me to take over? देख तेरे इसमें, बट योर्स इज यू नो, वो अपन ने ऐप बेस्ड साइट बना दिया है तो वो रेट ज्यादा दिख रहे हैं उसमें. अच्छा. इन द मीनवाइल यू जस्ट क्रिएट अ नॉर्मल वेबसाइट ना. ठीक है, I'll do that. तेरे वेबसाइट का एक कॉपी बना ले. हाँ. डन. मेरा भी डन. ओके. तो मैं अभी यहाँ पे ट्राई करता हूँ, तब तक तू पैरेलली इन योर कंप्यूटर प्लीज बी ऑन द सेम पेज. यस. तो ये पूछता है अपग्रेड करना पड़ेगा आपको साइट को. अगर आपके पास नया डोमेन खरीदना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, ऑलरेडी है तो यहाँ क्लिक कर लीजिए, या मे बी लेटर. तो मैं यहाँ पे गेट अ न्यू डोमेन पे जाता हूँ. तो अब जो प्राइसिंग पार्ट में बता रहा था, विक्स ओनली चार्जेस ₹1 पर डे टू पब्लिश इट. यानी ये वेबसाइट जो आपने क्रिएट की है बिना ऐड के आपके डोमेन पे चले जाए, इसका वो ₹1 पर मंथ लेता है, ₹1 पर डे, या ₹29 पर मंथ, या ₹350 साल के लेता है. इसमें वो साथ में आपको एक फ्री डोमेन भी देता है. तो अगर आपका ऑलरेडी कोई डोमेन नहीं है तो 1 साल के लिए वो डोमेन फ्री में दे देगा. तो आप अपग्रेड साइट में जाएंगे तो वो ₹29 के हिसाब से ₹350 आपसे मांगेगा. यू नो, आपको वो पेमेंट करते ही वो आपको पूछेगा कि चलो आपका डोमेन का भी, आपके पास एक डोमेन का फ्री कूपन है, बताइए आपको क्या डोमेन चाहिए. इफ यू सी इट इज ₹348 राइट. एज फॉर अ ईयर. अगले साल शायद वो रिन्यू करने के कुछ पैसे ले ले, तो कितने लेते हैं आज वो. तो यही सेम सर्विस इन यूएस इज $17 अ मंथ फॉर विक्स, बट इन इंडिया दे आर गिविंग इट एट 350. अब जो सेकंड पार्ट है, वंस आपने पेमेंट कर दिया और आपको वो आगे जाएंगे तो बोलेगा डोमेन भी खरीद लो, और डोमेन खरीद लिया विक्स से तो वो ऑटो लिंक भी कर देता है. अब नेक्स्ट पार्ट इज टू, एक मैटर बचा है, वो ईमेल वाला है, वो मैं समझा देता हूँ कैसे होता है. और अंकुर भाई एक चीज, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, पर अगर आपको आपका डोमेन प्रेफर्ड डोमेन नेम नहीं मिल रहा है तो इट्स बेटर टू यूज गूगल. आप गूगल करके GoDaddy की एक डोमेन अवेलेबिलिटी का टूल है जहां से आपको ये पता चलता है कि वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं है. तो अगर बहुत जेनेरिक नाम है तो वो अवेलेबल नहीं रहेंगे. यूनिक अगर नाम है आपके डोमेन का तो वो आपको इजीली मिल जाएंगे. और मेरे हिसाब से ₹200-300 पर एनम मांगते हैं. हाँ. लेकिन रिन्यू करने पे शायद अगले साल से ₹800-850 yes. हाँ, करेक्ट. तो फर्स्ट ईयर आपको हुक करने के लिए वो थोड़ा सस्ते में कर देते हैं. right. अब जैसे ही आप वो डोमेन खरीदेंगे तो यहाँ पे ऊपर टॉप में आपके नाम के नीचे ये डोमेन करके बटन आएगा. आप ये डोमेन पे क्लिक कीजिए तो आपके पास जो डोमेन आपने विक्स से खरीदे हैं वो आ जाएंगे. जैसे मेरे पास ये 2 डोमेन विक्स से खरीदे हैं. तो टू एड्रेस योर क्वेश्चन दीपेश, यू कैन डायरेक्टली बाय अ मेल बॉक्स फ्रॉम हियर. ठीक है, आप यहाँ से जाइए. अभी ये कुछ मालूम नहीं बंद है, बट दिस कनेक्ट्स टू गूगल सूट. और वो आपसे डोमेन के पैसे, ये ईमेल के पैसे लेते हैं अराउंड ₹300 पर मंथ पर यूजर. is what Wix charges to use Google Suits, but you can directly buy from Google Suits जो अभी डिस्काउंट दे रहे हैं ₹125 महीने में पर यूजर दे रहे हैं. right. और फिर आप उसको यहाँ से तो अगर आपने Google Suits अलग से खरीदा
तो आपको ये मेल बॉक्सेस में जाना पड़ेगा और यहाँ पे कॉन्फ़िगर योर एमएक्स रिकॉर्ड्स पे जाके आप यहाँ पे ये जी सूट सिलेक्ट करके ये एमएक्स रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए ढेर सारे ट्यूटोरियल्स है ऑनलाइन, इसलिए मैं डिटेल में नहीं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। और कहीं अगर आप अटक गए तो गिव मी अ कॉल, आई विल हेल्प यू आउट, या गिव स्वरूप अ कॉल, स्वरूप विल हेल्प यू आउट इन डूइंग इट। सेकेंड थिंग इज कि आपके मेल के भी कई बार आपको ना मेल में डीएनएस वीएनएस की सेटिंग्स आपको कोई कोई चीजों के लिए लगेगी, तो वो सब चीज पॉसिबल है इन इन विक्स। एंड वंस यू डू इट, तो इसी तरीके से मैंने ergonomics.in बना के उसको पब्लिश किया था इन द वेरी सिमिलर वे। और ये पेजेस ऐसे, आई विल जस्ट क्विकली शो यू माय वेबसाइट अगेन। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे सोशल लिंक्स भी है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, शॉर्ट छोटे कॉर्नर में मेरे ऑफिस का 360 डिग्री व्यू है। नीचे हमने कुछ यूएसपीज बनाए थे वो है, और एक कॉन्टैक्ट एड्रेस और एक मेल फॉर्म है। इसके अलावा अबाउट पेज में अबाउट अस है। यहाँ पे हमने थोड़ी कहानियां लिखी है, थोड़ी स्टोरीज लिखी है, कुछ फोटोज डाली है, सो दैट पीपल नो हु आई एम एंड व्हाट आई डू एग्जैक्टली। अगेन किसी का सवाल था कि प्रोडक्ट पेज में कैसे प्रोडक्ट्स डालना है। तो आप प्रोडक्ट पेज में जाएंगे और वो साइड का जो प्लस बटन है उसमें इमेज गैलरी लेंगे, तो उसमें बहुत सारी टाइप्स की गैलरी है, आप कोई भी एक टाइप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आप इमेज उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। अब जैसे मैंने कुछ गलतियां की है जल्दबाजी में, मैंने इमेज को रीसाइज नहीं किया, लेकिन अगर आप सारी इमेज को एक ही साइज का करेंगे तो उतनी यूनिफॉर्मिटी दिखेगी आपके इस पे। मैंने एक पेज बनाया है क्लाइंट्स का, जिसमें मैंने अगेन एक गैलरी उठाई और मेरे क्लाइंट्स के लोगोस डाल दिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। एक हमने पेज बनाया था रिसोर्स का, जिसमें हमने ब्लॉगिंग के लिए ऑप्शन छोड़ा है। तो मैं यहाँ पे खुद के ब्लॉग्स डाल सकता हूँ, और इसके लिए मुझे लॉगिन करके वो पूरा विक्स के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करना पड़ेगा। नया ब्लॉग यहीं पे मैं लॉगिन का बटन दबाऊंगा, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा और ब्लॉग बना दूंगा। तो ये सारे टूल्स है छोटे छोटे जो आप यूज एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं कोई बहुत ज्यादा सवाल आता है तो आप स्वरूप या मुझसे पूछ सकते हैं। So that's about it. Swarup, are there any questions? Yes, Ankur, I'm addressing them as we speak. Okay, क्योंकि मेरे इसमें ना अगेन वो क्वेश्चन एंड आंसर वाला ब्लॉक नहीं खुल रहा है। So I think with this we are formally done with this session. If people have anything to know, what about SEO and SEM? तो इसमें ही देखिए एक स्वरूप, आपका पेज खुला हुआ है क्या अभी? Ankur, आपका पेज खुला हुआ है क्या अभी भी, वो जो अपन बना रहे थे? नहीं अंकुर, मैंने क्लोज कर दिया वो। तो ठीक है, एक सेकंड, लेट मी डू इट। मेरे पास मेरी वेबसाइट का कॉपी एक खुला हुआ है। कॉपी खुला हुआ है ना मेरी वेबसाइट का? तो एक बार शेयर करो, लेट मी क्विकली टेल देम अबाउट एसईओ वगैरह भी। ओके, आप शेयर कर रहे शेयर, हो? हाँ। तो स्वरूप कैन यू गो टू दैट, ये डैशबोर्ड, पेज व्यू, ओके। ये पहला वाला विक्स के नीचे जो है। अच्छा, ओके। हाँ, मेनूज एंड पेजेस। हाँ, इसमें जो हर पेज में आपको ये 3 डॉट दिख रहे हैं ना, हाँ, उसमें एसईओ है, राइट? इसमें एक एसईओ करके ऑप्शन है, करेक्ट। आप क्लिक कर दीजिए एक बार, सो दैट पीपल कैन सी। और यहाँ पे आप एसईओ के सारे डिटेल्स डाल सकते हैं। इसमें ना एक विक्स का गो टू एसईओ विजार्ड भी है, गो टू एसईओ विजार्ड। आप प्लीज क्लिक ऑन इट। तो वो एसईओ विजार्ड की एक खासियत ये है कि वो ना हमको बता देता है कि क्या क्या करना पड़ेगा। राइट।
तो आप अपने एसईओ के सारे डिटेल्स अगर आप एसईओ विजार्ड में जाके करेंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, काफी इजी है। तो आप वहां पे कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं, सब कर सकते हैं। एंड the SEO will be done. Right. If there are any other questions, guys, this is the time you can ask us. Okay. Meanwhile, a very quick feedback and honest feedback मुझे चाहिए कि was this whole session a helpful session for you guys? If it was, please write yes. Otherwise, write no. See, the basic idea is हाउ टू गो टू एसईओ पेज फिर से दिखाना है मैम। इसके बाद मैं इस पूरे का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगा, उसमें वो चीज रहेगी, आप रिविजिट कर सकते हैं। सो हाउ मच डज गेटिंग अ वेबसाइट एक्टिव चार्ज? सी, अगर आपकी वेबसाइट में कोई एप्स नहीं है, आई मीन ई कॉमर्स वाला ये नहीं है, बेसिक वेबसाइट है, तो 350 रुपए पर एनम, 348 रुपीज पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर एटलीस्ट पे विक्स उसको लाइव कर देगा। सेकेंड चीज है कि इतने में ही इसी के अंदर वो आपको एक फ्री डोमेन भी खरीदने देगा 1 साल के लिए। तो दैट डोमेन का कॉस्ट आपको पहले साल नहीं लगेगा, तो इफेक्टिवली 350 रुपीज पर एनम पे आपकी साइट लाइव हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको अगले साल का खर्चा एज ऑफ नाउ इज 850 रुपीज फॉर डोमेन का रिन्यूअल एंड 350 रुपए विक्स के, तो 850 प्लस 350 इज 1100-1200 रुपीज। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपका प्रीमियम डोमेन है और वो 3000 रुपए का है तो आपको शायद ज्यादा पैसे देने पड़ जाए। तो अभी एज ऑफ नाउ विक्स इज चार्जिंग वेरी लेस, एंड जो मेरा एक्सपीरियंस विद दिस ब्रांड्स रहा है कि वो जिस प्राइस पे आपको हुक करते हैं वो उसी प्राइस को मेंटेन करते हैं। कल को वो आपसे ज्यादा पैसे या कम पैसे नहीं लेते हैं या चेंज नहीं करते हैं, तो यू कैन ऑलवेज बी श्योर कि ये इसी के आसपास रिवॉल्व करेगा। नंबर 2, जो पॉइंट मेरे को बोलना है कि इसमें आपका गो डैडी वॉज चार्जिंग, मैम वो आपका गो डैडी में जो था वो कितना प्रीमियम था ये मुझे नहीं मालूम। आई थिंक स्वरूप कैन मीट यू इन पर्सन आफ्टर द लॉकडाउन एंड हेल्प यू इन डेफिनेटली। वन गुड थिंग अबाउट स्वरूप इज जो चीज उसे नहीं आती वो आपको बता देता है कि ये मुझे नहीं आती, ये आप किसी और से करवा लीजिए, तो दैट इज राइट, आपको घुमाएगा नहीं वो। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ईमेल्स आप जीमेल गूगल सूट से अलग से खरीदिए और उसको इसके साथ लिंक कर दीजिए। हर जगह पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है जो आपको ये सब चीजों में हेल्प करेगी। Is there anything else we are missing, स्वरूप, जो अपन ने डिस्कस किया था बताने का और नहीं बताया? I don't think Ankur भैया, but I would just like to add कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाए तो कीप स्पेशल फोकस ऑन द कंटेंट, बिकॉज आप एक ही बार वेबसाइट बनाएंगे, आई डोंट थिंक आप बहुत ज्यादा बार उसको एडिट करेंगे, उसको एडिटिंग करने के पीछे जाएंगे। एक मुझे पॉइंट याद आ गया है, हाँ, भूल जाऊंगा। तो ये जो आपने एक वेबसाइट बनाई है इसके विक्स 350 रुपए लेते हैं। आपने एक दूसरी वेबसाइट बनाई जो अगेन आपको इसी पे रिप्लेस करनी है, इसी डोमेन पे, तो विक्स को फिर से 350 रुपए देने पड़ेंगे। यानी जितने आप वेबसाइट्स बनाएंगे उतने बार आपको 350 रुपए देने पड़ेंगे अगर आपको एड फ्री चलाना है तो विच इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर कि वन प्रोडक्ट, यानी इट्स एक्चुअली बाइंग अ साइट फ्रॉम विक्स, एडिटिंग इट एंड देन यूजिंग इट। तो डोमेन इज अ डिफरेंट थिंग। डोमेन के 850 रुपए या फ्री में डोमेन आपको जो भी मिल गया दैट इज डिफरेंट एंटिटी, बट ये वेबसाइट के 300-350 रुपए एवरी टाइम देने पड़ेंगे। तो सिर्फ
लेकिन डिजाइन करने के पैसे नहीं लगते। तो आप डिजाइन कितनी भी बार कर सकते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, हाँ। और फिर उस डिजाइन को पे करके फाइनलाइज करना कि नहीं, ये आप पे चॉइस है। तो सो इट्स बेटर कि आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें एक थीम और टेम्पलेट चूज करने में, और उसके बाद ही आप प्रोसीड करें। सो आई थिंक द राइट थिंग टू डू हियर वुड बी, जिनके अभी वेबसाइट्स नहीं है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो द राइट थिंग टू डू वुड बी टू क्रिएट अ सिंपल वन पेजर वेबसाइट जिसमें आप अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल दें। सो द आइडिया इज टू क्रिएट अ विजिटिंग कार्ड ऑनलाइन. Think of it as a visiting card which is online, and not focus a lot on the products and services and how you can procure payments from for those products and services as of now. If you want to do it yourself, I would suggest that you start off with a simple website, with a simple one-pager website consisting of your contact details, of your USPs, of a certain, a few descriptions of your products and services. That's it. And maybe later on, once you figure out all these things, you can maybe proceed and add your product catalog and your service catalog as well. ओके, दिव्या का से क्वेश्चन है, हाउ डिफरेंट डज इट हेल्प टू बाय फ्रॉम ईमेल फ्रॉम गूगल सूट्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल जीमेल आईडी? दिव्या, ये उतना ही फर्क पड़ता है जितना, देखिए, एक अपने आप भरोसा आ जाता है जब आपके नाम के आगे divya@craftingcrate.com, thecraftingcrate.com का जो फर्क है, एंड divya_2159@gmail.com का जो फर्क है, ये वही फर्क है। सर्विस ऑफ ईमेल में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन उस एंटिटी के कारण ये, अगर थोड़े रॉ लैंग्वेज में बोलूं तो, अगर आपकी दुकान धर्मपेट मेन रोड में है कि मराठोली के अंदर गली में है, का जो फर्क है वही फर्क है। it helps in creating that impression about your business. So anything which is, ends with your domain gives you that stability कि यार इन लोग की वेबसाइट है। जैसे हम सोचते, दुकान में जाते हैं तो देखते हैं बड़ी दुकान है, इंटीरियर किया है, सब बढ़िया है, तो यार बंदा ट्रस्टवर्दी होगा, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। वैसे ही एक डोमेन रजिस्टर्ड है, डोमेन से ईमेल आ रहा है, ये सब करने से आपको ये समझेगा कि पीपल आर, यू आर ट्रस्टवर्दी। सेकंड क्वेश्चन जो चेतन भाई ने पूछा था कि एक बार अगर, तो सर एक बार आपने उसको पब्लिश कर दिया तो आप उसका टेम्पलेट और थीम चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उसके अंदर का कंटेंट चेंज कर पाएंगे। यानी अगर आपको 4 की जगह 10 फोटो और डालनी है तो आप उसी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा कलर स्कीम और टेम्पलेट ही चेंज करना है तो वो पॉसिबल नहीं होता। आई थिंक आई हैव आंसर्ड इट। अदरवाइज आप इस तरह के समझिए कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, अंदर का कंटेंट आपको जितनी बार चेंज करना है वो कर सकते हैं। और ऑनेस्टली थीम और टेम्पलेट चेंज करना बहुत ज्यादा एडवाइजेबल भी नहीं है, क्योंकि दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क ऑफ योर वेबसाइट विच गूगल हैज ऑलरेडी कैप्चर्ड। आप उसमें कंटेंट भले ही थोड़ा बहुत चेंज करें, लेकिन आप पूरी की पूरी थीम चेंज करने अगर जाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो अथॉरिटी क्रिएट हुआ होगा ओवर टाइम गूगल के सर्वर्स पे, वो अथॉरिटी फिर जीरो से आपकी वेबसाइट को क्रिएट करना पड़ेगा इफ यू चेंज अ थीम एंड अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। Is there any other question, sir? So if there is no other question, let me sign off by saying that it was a wonderful session. I personally enjoyed it, but as Swaroop told in the beginning, that at the end of our sessions we normally introduce the next session which we are going to do. तो एक बहुत बड़ा कहानी है, हमने जानबूझ के वेबसाइट, मुझे मालूम था कि हमारे जो व्हाट्सएप वाला सेशन है उसमें 50 से 60 रजिस्ट्रेशंस थे, बट इस सेशन में हमारे 20 रजिस्ट्रेशंस थे, और मुझे वी वेर एक्सपेक्टिंग दिस। लेकिन जो हमारा अगला सेशन हमने प्लान किया है, विच इज एक्चुअली ईमेल मार्केटिंग, एंड ईमेल मार्केटिंग के लिए ना एक आपका वेबसाइट होना और एक लैंडिंग पेज होना थोड़ा जरूरी था, इसलिए हमने ये सेशन बनाया था। और टू हैव मोर एंड मोर पीपल टू कम ऑन दिस, इसलिए हमने इसकी प्राइस भी 100 रुपए ही रखी थी, ताकि कुछ सीरियसनेस हो, अदरवाइज कोई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कोई कंट्रोल नहीं हो पाता है।
The next session we are going to do on email marketing. और अगर जो नागपुर की हालत है और हमको लगता नहीं कि लॉकडाउन खुल रहा है, तो we will do it somewhere around next Thursday. Swaroop, are you fine with that? Yeah, absolutely. Next Thursday, same time. The Yeah. topic will be email marketing, and let me quickly tell you what we will try and cover in it. Number one, what are the nitty-gritties of email marketing? It cannot be done from your original email accounts. What are the costs involved? There are so many players involved in it. 5 पैसा ईमेल से लेके 25 पैसा ईमेल तक आपका खर्चा हो सकता है. कुछ चीजें फ्री होती है. इसके अलावा हाउ टू डिजाइन एन ईमेल, व्हाट इज एन HTML ईमेल, ये भी हम बताएंगे. आई एम जस्ट सो सॉरी, आई नीड टू स्नीज. स्वरूप, कैन यू प्लीज टेक ओवर? या श्योर. तो जैसा कि अंकुर भैया बता रहे थे कि ईमेल मार्केटिंग के जो कुछ छोटे छोटे टेक्निकल डिटेल्स होते हैं, जस्ट लाइक ही mentioned the jargon of the website creation today. We will be going through the jargons of email marketing as well, and we will tell you the best practices to create to create a successful email marketing campaign, how to analyze the results of those email marketing campaign, and how to plan the next email marketing campaign based on the results that you've received. तो इसके कारण होता ऐसा है कि you create a very effective email marketing strategy which not only makes you look more professional in front of your customers and your stakeholders, but also gives your business a very approachable sort of an image. तो अगर आप अपने बिजनेस का स्टोरी बता रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में अपने ईमेल मार्केटिंग के थ्रू बता रहे हैं, तो there's a very high chance that people might respond to you or to your emails and inquire about your products and services. So that's the whole that's the whole crux of the email marketing workshop that we're going to conduct. And again, the disclaimer: we are not. So Swaroop is an expert. So we are not experts with website designing. Let us be clear on it. But Swaroop is an expert in email marketing. That is something he does professionally. And how to send an email and how to convert that conversation into, instead of information, to make it a conversation. आप उस ईमेल से रिप्लाई एलिसिट कर सकते हैं आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे. ये सब चीजें कैसे होती है ये, और ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट टाइम फ्लॉक्सेंट करके एक टूल आपको बताया था, दिस टाइम वी आर गोइंग टू, और हमने यहाँ पे विक्स बताया था, वैसे ही हम एक ऑनलाइन टूल फॉर ईमेल मार्केटिंग भी आप लोग को बताएंगे. प्लीज स्प्रेड द वर्ड. एंड द कॉस्ट विल बी अराउंड 200 rupees. हम उससे ज्यादा रखना नहीं चाहते हैं. We want more and more people to come. The idea of taking the money is also not to earn out of it. Of course, पैसे कमाना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन the idea is to have serious people in the room so that no one's time is wasted. So with that, we officially close this session. If there are any other, स्वाति जी ने एक रिक्वेस्ट किया है कि हम बल्क मैसेज मार्केटिंग एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग का सेशन फिर से करें. स्वाति जी, वी आर इन द प्लान ऑफ डूइंग सो. मे बी आफ्टर ईमेल मार्केटिंग हम फिर से एक व्हाट्सएप सेशन करेंगे, क्योंकि पहला सेशन जो हमने व्हाट्सएप का किया था वो बहुत ही क्लोज ग्रुप, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली ही इन्वॉल्व थे. बहुत तो वो हो नहीं पाया, लेकिन maybe the next time we will redo it. It was a wonderful session. और उसमें एक बहुत अच्छा हुआ था कि वो the service provider of Flocksend करके जो वेबसाइट है, जिनने उनके ओनर उस दिन प्रेजेंट थे, and he even passed on discounts to people. To the best of my knowledge, 4 to 5 people have already signed up with them. कुछ डिटेलिंग हो रही है तो, but yes, we will do it again. Maybe after this. Any other questions is most welcome. Otherwise, we will leave this meeting. समस्या ये होती है कि भाई
तो मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है अपूर्व, ही हैज जस्ट सेड थैंक्स स्वरूप एंड अंकुर फॉर एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव सेशन. Right. अब अपूर्व वाज माय रूममेट इन कॉलेज, तो आई डोंट नो हाउ टू एड्रेस what part of me is entertaining for him. Okay. मेरी शक्ल ही बड़ी अच्छी है, आई थिंक he thinks of me as a clown. मेरे को समझ में नहीं आता है कि लोग सवाल भी नहीं पूछते हैं और लॉग आउट भी नहीं करते हैं. तो हमको और कोई सवाल Awkward silence. for them. Let me, चलो, I am allowing everyone to talk now so that people can interact. Guys, you all can talk now. Just start your mics if you actually feel like. Hi, Ankur Bhaiya. Hi Divya. So my question is, if the website is a product-based website, Okay. so the charges for the whole year would be more than 350? Yes. कितना था स्वरूप, उसमें कितना आया था? Around 1200 से शुरू हो रहा है दिव्या उसमें बेसिक पर ईयर. Okay. तो आई थिंक उस उतने पैसों में आई थिंक यू विल बी एबल टू क्रिएट अ वेरी नाइस प्रोडक्ट ओरिएंटेड वेबसाइट फॉर योरसेल्फ. and with the e-platform things. अब honestly Divya, we have not explored it very well. आप खुद ही एक बार एक्सप्लोर करके देख लेना. तो अपन एक्सप्लोर कर ही सकते हैं, उसके बाद we can decide कि करना है कि नहीं. चेतन सर, कैसा लगा आपको हमारा सेशन? अंकुर भैया बहुत अच्छा सेशन था. मुझे आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस एंड लकीली आपका मैसेज आया तो यू नो आई साइंड इमीडिएटली. अच्छा था, बहुत अच्छा सेशन था. मैं बोल रहा हूँ वेरी इंफॉर्मेटिव है तो अपने अपने वेबसाइट्स बना लेते हैं. हाँ. एक्चुअली क्या होता है ना कि हमको ये भी पता चल जाता है कि जो हमारे पास आ रहा है सेशन लेने के लिए, ये वेबसाइट बनवाने के